السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا، صدق اللہ العظیم۔ آج حلقہ کشف المعجوب سبق نمبر 116 ہے۔ اس کا آغاز اپریل 2010 میں، جس کو 14 سال ہو گئے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ میں بھی پڑھ رہا ہوں، سبقاً طالب علم ہوں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا جو مسلسل کشف المحجوب کے پچھلے سبق سنتا رہے گا، سنتا رہے گا، سنتا رہے گا۔ بلکہ یہاں تک تجربے میں بات ایک دفعہ نہیں، بار بار آئی ہے۔ دل کی کوئی مراد پوری نہ ہو رہی ہو، زندگی مسائل مشکلات الجھنوں میں جکڑی ہوئی ہو، تو 90 کشف المحجوب درس سننے کی منت مان لے۔ گاڑی، گھر، دفتر، جہاں بھی اس کا بہت نفع میں نے دیکھا، بہت فائدہ دیکھا۔ چاہے روز 1 سنیں، 2 سنیں، تھوڑا سنیں، زیادہ سنیں، اس سے بہت زیادہ میں نے تاثیر پائی ہے، فائدے پائے ہیں۔ کشف المحجوب کا درس اور سبق جو ہم مسلسل پڑھ رہے، سن رہے اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ آج کے سبق میں حضرت ابو بکر محمد بن موسیٰ الواسطی، واسط شہر بنو امیہ کے خلفاء نے درمیان میں وسط میں ایک شہر بنایا تھا، اس کو واسط کہتے ہیں۔ تبع تابعین میں اپنے فن میں امام، بلند حال، لطیف کلام، محقق مشائخ میں سے تھے۔ حضرت جنید بغدادی کے قدیم اصحاب میں سے تھے۔ آپ کی عبارت بہت مشکل ہوتی تھی، اہل نظر کی آنکھوں میں جچتی نہ تھی۔ آپ کسی شہر میں زیادہ دیر نہ ٹھہر پاتے اور کسی شہر میں زیادہ دیر نہیں آرام کرتے تھے۔ تو آپ مرو شہر میں آئے تو لطائف طبیعت کی وجہ سے نیک سیرت تھے، انہوں نے نہایت عزت و احترام دیا، آپ کو قبول فرمایا، کلام سنا اور پھر زندگی وہیں گزاری۔ آپ فرماتے ہیں اہل ذکر کو اس کے ذکر میں ان لوگوں سے زیادہ غفلت ہوتی ہے جو اس کے ذکر کو فراموش کر دیتے ہیں، اس لیے جب اس کو یاد رکھے، اس کے ذکر کو فراموش کر دے تو کوئی نقصان نہیں۔ ہاں، نقصان اس میں ہے کہ اس کا ذکر تو کرے مگر اس کی ذات کو فراموش کر دے۔ اسے پھر سنیے، اس کا ذکر تو کرے مگر اس کی یاد کو فراموش کر دے، کیونکہ اس صورت میں ذکر بے حضور ہوگا۔ اللہ کا ذکر حضوری مانگتا ہے، جس کو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کا ذکر ہو اور دھیان کس کا ہو؟ اللہ کا۔ ذکر بھی اللہ کا، دھیان بھی اللہ کا۔ ہاں، نقصان اس میں ہے کہ ذکر تو کرے مگر اس کی ذات کو فراموش کر دے، کیونکہ اس صورت میں ذکر بے حضور ہوگا۔ پس اللہ جل شانہ سے روگردانی اس کے ذکر کے باوجود جو غرور پیدا کرے غفلت سے زیادہ نزدیک ہے، مقابلہ اس کے روگردانی کے جو غرور، کیونکہ اسے بھلا دینے والے کو غیبت فراموشی کے وقت، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ حضوری کے بغیر حضوری کا زعم اس غیبت کے مقابلے میں کوئی زعم نہ ہو۔ لہذا اگر آپ اپنے آپ کو کسی ذکر میں پائیں
تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو حضوری ملی، لیکن اس کو ملے گی جو کوشش کرے گا۔ ایک ہے حاضری اور ایک ہے حضوری۔ حاضری بہت مشکل چیز ہے، لیکن حضوری اس سے زیادہ مشکل چیز ہے۔ حضوری اس سے زیادہ مشکل چیز ہے۔ حاضری مل جانا مشکل ہے۔ آپ خود سوچیں، آج کے حلقہ کشف المحجوب میں کتنی مشکل سے تشریف لائے، کیا مجبوریاں، کیا مسائل، کیا الجھنیں، کیا حالات کی سختیاں، تنگیاں، کسی کی جیب کمزور، کسی کی طبیعت کمزور، کسی کے جذبے کمزور، چلو اس کی کریمی حاضری ہو گئی۔ اب حاضری کے بعد حضوری چاہیے، حضوری چاہیے۔ اور حضوری اس وقت کہتے ہیں جو حضوری کی مشق کرے، جو حضوری کی مشق کرے۔ اگر حضوری نہ ہوئی نقصان ہوگا۔ میں حضوری کی ایک مثال دیتا ہوں۔ بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کر کے گاڑی لی، پھر گاڑی لے کے ڈرائیونگ سیکھی، پھر ڈرائیونگ سیکھ کے گاڑی چلائی اور گاڑی کی حضوری نہ لی۔ سامنے بچہ آ رہا، کتا بھاگتا ہوا آ رہا، ایک جانور بھی آ رہا، یہ گاڑی بندہ لین سے پار کر رہا، اس کو سارا ڈرائیور ایک ایک چیز کو تول رہا ہوتا ہے کہ میں نے گاڑی کو سوار اور سواری کو بحفاظت منزل تک کیسے پہنچانا ہے، اس کا نام حضوری ہے۔ ایک درویش تھے، ان کے نام کے ساتھ تھا دائم حضوری۔ دائم ہاں، جو دم غافل سو دم کافر، من مرشد سبق پڑھایا ہو۔ ہر وقت اسی کے تعلق میں، اسی کی محبت میں، اسی کے عشق میں ایسا ڈوبا لوگ مجھے پہچان ہی نہ سکے۔ کوئی دنیا دار کہے، کوئی دکاندار کہے، کوئی ایماندار کہے، کوئی ایک نمبر، کوئی دو نمبر، اور میں اپنے آپ کو کیا کہوں کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے۔ یہ باخدا حضوری ہے۔ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ کن فی الدنیا غریب، دنیا میں ایسے رہے جیسے کوئی پردیسی مسافر ہے، سب سے جدا رہے، کوئی مجھے پہچان ہی نہ سکے، کوئی ایک نمبر، کوئی دو نمبر، کوئی دکاندار، کوئی ایماندار کہے، سمجھے، سوچے۔ دائم حضوری ان درویشوں کے نام کے ساتھ نسبت تھی۔ دائم حضوری، دائم حضوری ان درویشوں کے نام کے ساتھ نسبت تھی۔ دائم حضوری، دائم حضوری۔ ایک درویش تھے، انہوں نے اپنے خادم سے، مسلسل خادم یہ چاہ رہا تھا، حضرت اتنے سال ہو گئے ہیں، اب مجھے خلافت خرقہ اور اجازت عطا فرمائیں کہ میں اپنے علاقے میں آپ کی خلافت کی آواز لگاؤں اور لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤں۔ حضرت فرماتے تھے نہیں، تو ابھی کچا ہے، تو ابھی کچا ہے، ابھی اپنی طبیعت کو دیکھ کے چل رہا، حکم کو دیکھ کے نہیں چل رہا۔ نہ حضرت آپ مجھے آزما کے دیکھ لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی
अंदर भागो, हमें भूख लगी है और खजूरें ले आओ। और देखो शरई तौर पे ले आना। जी हजरत ठीक है। खजूरों की थाली मुट्ठी जो भी है भर के ले आया, हजरत के सामने रखा। मैं तो अभी कच्चा है। हजरत खजूरें, फरमाया हमने लफ्ज शरई कहा था तो ताक ले आता। 1 3 5 7 9 11 जितना भी, तो ताक ले आता। हजरत का एक खादिम था, उससे मोहब्बत करते थे, बाकी दिल जले, कहते थे कि इससे इतनी मोहब्बत और हमसे इतनी दूरी, जबकि हम खिदमत और तमाम जिंदगी में कुर्बानियां हमारी ज्यादा हैं, इतनी खिदमत और हमसे इतनी दूरी। तो फरमाया कि एक दफा हजरत ने फरमाया सबको जमा किया। हजरत जिससे मोहब्बत फरमाते थे उससे फरमाया नहीं, जिनसे जो जो दिल जले थे। ऊंट खड़ा था, ऊंट। हजरत ने एक से फरमाया जो सबसे ज्यादा दिल जला था, मैं भाई इधर आओ, भागो। जी हजरत, जी हजरत। इस ऊंट को उठा के ना छत पे रखो। हजरत को देखे कि हजरत की दिमागी सेहत ठीक है। वो देखिए, भाई ऊंट को उठाओ, जल्दी करो, उसको छत पे रखो। हजरत तो ऊंट हुआ या बकरी का बच्चा हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो कोई मसला नहीं, तुम्हारे लिए मुशक्कत। उससे अगला दिल जला, उससे अगला दिल जला, उससे अगला दिल जला, करते कराते सब कहने लगे हजरत ऊंट कैसे मुमकिन है। अब बुलाया उसको जिससे मोहब्बत थी। जी हजरत, और मैं इस ऊंट को उठाओ और उठा के छत पे रखो। जी ठीक है। अब ये दौड़ा, अब ये दौड़ा। कभी ऊंट की एक टांग को लिपटता है, कभी दूसरी टांग को लिपटता है, जोर लगा, पसीना पसीना। ऊंट था कोई बकरी का बच्चा, भेड़ का बच्चा था। ऊंट कहां हिले? जब देखा ना आजिज आ गया, कुछ नहीं कर सकता, पर मैं वापस आओ। फिर उन सबको बिठाया, बिठा के कहा तुम्हारे और इसमें ये फर्क है, तुम अपनी तबीयत और अकल को देख के चलते हो, ये हुक्म की हुजूरी और इश्क को देख के चलता है। पता इसे भी होगा कि मुमकिन नहीं, लेकिन इसने फैसला किया कि मैंने ऐसा करके दिखाना है। क्यों? हुक्म है, हुक्म पूरा करने की ताकत मेरे अंदर जितनी है मैं कर गुजरूं, बाकी अल्लाह पे छोड़। खिदमत हुजूरी मांगती है, इबादत हुजूरी मांगती है, हुजूरी मांगती। हजरत के खादिम थे, हजरत के खादिम थे जो सारा दिन सर पे पुराना सा कपड़ा बांधा, पुरानी सी धोती, पुराना सा कुर्ता, और कभी जानवरों की खिदमत कर रहे कि शाम को जो आते हैं हजरत के खानकाह में, वो जानवरों को जो है उनको दूध देना, गोबर को संभाल रहे कि उसको जलाना, और जो खुद्दाम आके पाखाना करते हैं उसको टोकरी में उठा के जंगल में फेंक के आना, और चारपाइयां चटाइयां बिछाना, सफाइयां सुथराइयां करना। और बाज सर फिरे उनसे भिड़ जाते थे और उनकी जी भर के बेइकरामी करते थे, उसको सह जाना, पी जाना। दिन रात इसी खिदमत में लगे रहते थे। हजरत की खानका और आस्ताने में हजरत को कोई परेशानी उनके होते हुए नहीं होती थी। नब्ज शनास भी थे, मिजाज शनास भी थे,
हुक्म शनास भी थे। हाजिरी के बाद उनके मन और जीव में हुजूरी अंदर से अंदर चली गई थी। हाजिरी के बाद उनके मन और जीव में हुजूरी रच बस गई थी। अब ये ऐसे चलते रहे, सख्तियां तलखियां बर्दाश्त करते रहे, खिदमत को नहीं छोड़ा। मैं एक लफ्ज अक्सर अर्ज किया करता हूं, हर खिदमत के साथ नागवारी जुड़ी हुई है। वो खिदमत अल्लाह की हो, वो खिदमत अल्लाह के हबीब की हो, और वो खिदमत मुर्शिद की हो, माँ बाप की हो, मुआशरे की हो, और सिला रहमी की शक्ल में खिदमत हो। सिला रहमी की शक्ल में नागवारी जुड़ी हुई है, नागवारी जुड़ी हुई। चलते रहे, न जवाब दिया न वजाहत की, लोगों की बेइकरामी सहते रहे, खिदमत के किसी शोबे को नहीं छोड़ा, मुर्शिद और मुर्शिद खाने की अजमत को नहीं छोड़ा, अदब को नहीं छोड़ा। 100 वसवसे 100 बदगुमानियां लोग डालते हैं, हमेशा डालेंगे। नबी जैसी हस्ती अलैहिस्सलाम के लिए बदगुमानियों की इंतहा आई। जो नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, उनके लिए बदगुमानी आना कोई अनोखी चीज नहीं, लेकिन ये बदगुमानी आती इसलिए है, ये आशिक को आके आजमाती है, इश्क में सच्चा है या कच्चा है। सच्चा है, कच्चा है। आती रही, चलते रहे, साल हर साल जिंदगी के गुजर गए, साल हर साल जिंदगी के गुजर गए। बस हजरत का विसाल हो गया। इतनी बड़ी खानकाह थी बर्रे सगीर की। अब ख्याल आया कि इस खानकाह का मसनद नशीन और जानशीन कौन हो। उन्हें कहा ये बंदा बहुत जाकिर शागिल है, दिन रात रोजे, रात को तहज्जुद, इबादत। उसने कहा ये बंदा है जो किसी से बात ही नहीं करता, खामोश, हर वक्त अल्लाह की तार लगी हुई है। नाम आए तो कहा वहां के बड़े जितने भी थे, मुख्तलिफ इलाके के बड़े इकट्ठे हुए। अब उस खानकाह, उस आस्ताने, उस तस्बीह खाने का जानशीन मुकर्रर करना है। तो ख्याल आया फौरन कहा कोई मिटा हुआ बताओ जिसने हुजूरी हासिल की हो। कोई मिटा हुआ बताओ जिसने हुजूरी हासिल की हो। तो फरमाया ये मिटे हुए हैं, ये तस्बीह दिन रात, ये रोजा, ये तहज्जुद, ये कुरान रोज एक खत्म करता है, ये 10 पारे रोज पढ़ते हैं, ये घर बार छोड़ के कुर्बानियां करके आए बैठे हैं। उनमें से जो सबसे बड़े थे, उन्होंने कहा वो जो बंदा अभी तक सफाइयां कर रहा है, मैला कुचैला, जरा उसको तो मशवरे में साथ बिठा लो। उन्होंने कहा वो तो खादिम है, वो तो हजरत का खादिम है, मजमे का खादिम है, उसको ना बिठा लो। उनको बुलाया तो वो किसी कोने में यूं ऐसे बेचारे बैठ गए कि मैं तो इस काबिल नहीं। जब वो बैठे तो फैसला हुआ इस खानकाह का मसनद नशीन और मौजूदा पीर ये दुर्वेश होगा। इसने हाजिरी के साथ हुजूरी को हासिल किया, हाजिरी के साथ हुजूरी। उनका नाम था शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह। बड़ी बड़ी हस्तियों के फिर मुर्शिद आजम। मेरे हुजूर फरमाते हैं मैं 70 दफा रोजाना इस्तिगफार करता हूं। नबी मासूम, नबी पाक,
یہ میرے آپ کے سمجھانے کے لیے ہے کہ میں 70 دفعہ روزانہ استغفار کرتا ہوں. اپنی زندگی کے سبق میں آج کے حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب میرے سامنے ہے، جس کو ہم گزشتہ 14 سال سے پڑھا رہے ہیں، اور اس کا سبق یہی ہے کہ حضوری حاصل کریں. حاضری مل گئی خدمت یا عبادت کی، تسبیح خانے کی حاضری کی، اب اس کی حضوری کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تسبیح خانے کی حاضری کی عظمت ختم ہو جائے، وقار ختم ہو جائے، ادب ختم ہو جائے. پہلے یہی تھا جو تسبیح خانے کے در و دیوار کو چومتا تھا، میری طرف دیکھ رہے ہیں، اب یہی ہے کہ تسبیح خانے کے در و دیوار کو تھوکتا ہے، یا دور ہوتا ہے، یا کراہت کرتا ہے، یا اس کے اندر اکتاہٹ ہے، بیزاری ہے، اکتاہٹ ہے، بیزاری. میری آپ سے درخواست ہے، میری آپ سے، میری اپنے آپ سے بھی، کہ اس عظمت کو دل سے نہ جانے دیں. رنگ اڑ گیا گلوں کا، یہ غور سے سنیے گا، رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، پھولوں کا رنگ اڑ گیا کوئی بات نہیں، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا. پھول ہوتا ہی خوشبو کے لیے، اگر اس میں خوشبو نہیں ہے پھر کچھ بھی نہیں. اور یہ خوشبو حضوری کی خوشبو، حضوری کی خوشبو. یقین جانیے آج کی ساعت تک 1984 میں اپنے شیخ سے میں بیعت ہوا، اپنے مرشد سے بیعت ہوا، آج 2024 ہو گئے، 40 سال زندگی کے گزر گئے، آج بھی ایسے جھٹکا لگتا ہے اور ایک احساس ہوتا ہے کہ حضرت نے فرمایا. یقین جانیے کوئی دن بھول جاتا ہوں گا، خطا غفلت، کوئی شاید ایسا ہو جس میں بعض اوقات مجھے حضرت کی آواز آئے، ایسے ایک دم جھٹکا لگتا ہے، سوتے ہوئے جاگتے ہوئے حضرت نے حکم فرمایا، یا حضرت نے آواز دی ہے، یا حضرت نے ایک بات ایسے فرمائی تھی کہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. آج بھی سوتے جاگتے مجھے ایک دم جھرجھری سی آ جاتی ہے اور میں ان کو سنبھالتا ہوں. ایک دفعہ نا ایک بندہ ایسے کر رہا تھا، میں نے کہا ٹھہر جا، میری غیر اختیاری چیز ہے یہ، تیری اختیاری چیز ہے تو نہ کر. میں تو اس کو بھی سنبھالتا ہوں کہ مجمع میں یہ چیز سامنے کسی کو نظر نہ آئے. لوگ ایک پل میں کاپی کرتے ہیں، جو کہ بعض چیزیں کاپی کرنے کی نہیں ہوتی. اگر مجھے کوئی جھرجھری جھٹکا لگتا ہے، یہ میری غیر اختیاری چیز ہے، اس کو میں کوشش کرتا ہوں سنبھالوں. کوئی چیز شیخ کی ایسی سامنے آتی ہے، اس میں احساس ہوتا ہے اوہو انہوں نے یہ فرمایا تھا. میرے سامنے اپنے مرشد کا آنکھوں کا چہرہ سامنے آ جا، 100% یا بول کانوں میں آتے ہیں. میں اپنی زندگی کے تجربات میں میرے پچھلے سارے درس لیکچر پڑھے ہیں، میں کبھی نہیں کہوں گا پہنچی سرکار فلاں دعویٰ فلاں دعویٰ فلاں دعویٰ، جن تابع ہیں، فرشتوں کو دیکھتا ہوں، مدینے پاک نماز پڑھ کے آتا ہوں. نہیں، ایک چیز کہتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے مرشد میں فنا کی ہے اور حضوری پائی ہے، اور پھر بھی ندامت ہے، کوئی دعویٰ نہیں. کہیں ایسا نہ ہو پرانا ہو کہ میں سیانا نہ ہو جاؤں اور پھر حضوری جاتی رہے اور اکیلی حاضری رہ جائے. حضوری جاتی رہے، اکیلی حاضری رہ جائے. کیوں؟ میں ایک بات بار بار آج بھی کہوں گا، خدمت اور عبادت ناگواریوں سے جڑی ہوئی ہے. سخت سردی وضو کرنا ہے اور آخری درجے کا ٹھنڈا پانی ہے، سخت گرمی وضو کرنا ہے اور آخری درجے کا گرم پانی ہے.
17 घंटे का गर्मियों का रोजा है और फर्ज है, और मुझ पे फर्ज है, इबादत है, नागवारियों के साथ जुड़ी हुई है। जी नहीं चाहता पैसे दूं, हुक्म है उशर पूरा दे, हुक्म है ज़कात पूरी दे, हुक्म है जेवर की ज़कात पूरी निकाल, हुक्म है बेटी बहन को पूरा हिस्सा दे, पूरा हिस्सा दे, पूरा हिस्सा दे। और अगर कोई तेरे ऊपर इल्जाम लगाता है इसने बेटी बहन का हिस्सा खाया है, उसकी ना वजाहत दे ना उसका जवाब दे, तेरे और तेरे अल्लाह का मामला है। मेरी आपसे दरखास्त है, हम इबादत में हुजूरी पाएं, हुजूरी, और फिर ऐसी हुजूरी पाएं फरिश्ते हमें कहें कि ये दाइम हुजूरी है। वाह, दाइम हुजूरी है, ये दाइम हुजूरी, और खिदमत में हुजूरी पाएं, हुजूरी पाएं, और फरिश्ते कहें ये दाइम हुजूरी है। और अल्लाह के यहां इस हुजूरी की कीमत है, अल्लाह के यहां इस हुजूरी का कमाल है, और अल्लाह के यहां इस हुजूरी की बहुत ज्यादा कीमत है, बहुत ज्यादा दर्जा है, और बहुत ज्यादा मकाम है अल्लाह के। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी कोशिश करें और लग जाएं, लग जाएं। देखें, मैं एक दफा एक बड़े लंबे सफर से वापस आया तो मेरा पाँव सोया हुआ था, सारी सवारियां उतर गई, मुझे क्या उतरे, मैं क्या पाँव सोया, मैं उतरता हूं। उस्ताद कंडक्टर को देख के ना बस चला गया। कंडक्टर ने ना आहिस्ता आहिस्ता बस चला रहा था, तो बाद में मैं उतरा तो मैंने कहा सीख रहे हो? कि हाँ सीख रहा हूं। और जब यह हाजिरी है, और जब वही उस्ताद हुजूरी में आता है तो पहाड़ों की खाइयां, चढ़ाइयां, उतराइयां उसको सारा पता होता है। यहां स्टीयरिंग कितना घुमाना है, यहां स्पीड कितनी रखनी है, किस किस चीज पे नजर है, और फिर सवार और सवारी को बामरे ताला हिफाजत लेके नीचे उतरता है पहाड़ों से और खाइयों से। यह हाजिरी के बाद हुजूरी का कमाल है। मुझसे कहने लगे पहाड़ों में, उसने कहा जी ये दरियाओं में, हमारे दरियाओं में जो पहाड़ों के दरिया हैं बड़े बड़े, इनमें गाड़ियां जाती हैं। मैंने कहा किन इलाकों की ज्यादा जाती हैं? करे पंजाब की ज्यादा जाती हैं। क्यों? पहाड़ों पे गाड़ी चलाना आती नहीं और सपीटे मारते हैं, ये अल्फाज हैं उसके। पहाड़ों पे गाड़ी चलाना एक फन है, हाजिरी के बाद हुजूरी है ना, गाड़ी भी हुजूरी मांगती है। हुजूरी इनके पास होती नहीं गाड़ी की, और स्पीड से चलाते हैं। गाड़ी गई वो समंदर, उसके अंदर, दरिया के अंदर, न गाड़ी मिली न बंदे मिले। जिस ये कौन से साल में बर्फ में लोग दब गए थे मरी में, 2022 में, 22 में, मुझे वहां के एक बंदे ने बताया, मरी में था, उन्हें हमें पता चल जाता है कि अब बर्फ किस सतह की पड़ने वाली है, हम फौरन एक तरफ हो जाते हैं, हमें यहाँ की आबो हवा का पता है। मैंने कहा मरे कौन थे? कहा ये सारे सिंध वाले, पंजाब वाले, यही गाड़ियों में बैठे रहे, उन्होंने समझा कि हमारी गाड़ी का हीटर काम कर जाएगा। तो जिंदगी के हर शोबे में तो हम एहतियातें सीख सीख के बचने की हुजूरियां पा लेते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने हुजूरी, तस्बीह पढ़ते हुए हुजूरी, सजदे में हुजूरी, रुकू में हुजूरी, तिलावत में हुजूरी, तस्बीह खाने की हाजिरी में हुजूरी, अमाल करते हुए हुजूरी, इसकी मश्क तो शुरू कर दें। अल्लाह वालों, इस पे मेहनत तो शुरू कर दें। वो करीम है,
کریم کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ مراقبے میں حضوری، یوں کہا کہ پہلے عادت بنا، پھر ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی، یہ عادت عبادت بن جائے گی، یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ یہ حضوری حاصل تو کریں، اس حضوری پہ محنت تو کریں، اس حضوری پہ کوشش کریں، اس حضوری پہ جان تو مارے۔ یقین جانیے میرے حضرت مجھے کوئی چھوٹی سی خدمت عنایت فرماتے تھے، آج بھی میری پرانی ڈائریوں میں خدمتیں لکھی ہوئی ہیں، فلاں وقت میں یہ خدمت عطا فرمائی تھی، دل و جان دے دیتا تھا، پھر بھی ندامت ہے، کوئی دعویٰ نہیں۔ بھولنا تو دور کی بات، کوتاہی تو دور کی بات، غیر ذمہ داری تو دور کی بات، اپنی زندگی کے اس روحانی سفر میں آج کے بعد میں بھی آپ بھی حضوری پہ محنت کریں گے۔ کس پہ محنت؟ کس پہ محنت؟ محنت کریں گے۔ ہر چیز محنت مانگتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ ہر چیز محنت مانگتی ہے، حضوری بھی محنت مانگتی ہے۔ آپ سوچیں کتنی مشکل سے تسبیح خانے کی حاضری، کتنی مجبوریاں آپ کے گھروں میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی زندگی میں، کسی کے پاس وقت ہے تو پیسے نہیں، کسی کے پاس پیسے ہیں تو وقت نہیں، کسی کے پاس مال ہے تو صحت نہیں، کسی کے پاس صحت ہے تو مال نہیں۔ زندگی کتنی مجبوریوں کے بعد اللہ نے آپ کو تسبیح خانے میں قبول کیا، یا آپ جہاں بھی بیٹھے میری آواز اور پکار کو سن رہے، کتنی مجبوریاں اب قبول ہو گئے ہیں، اب حاضری ہو گئی ہے، اب اس کو قبول کروانا ہے اور اس کی حضوری پانی۔ حاضری بھی محنت مانگتی ہے، لیکن حضوری اس سے اگلی محنت مانگتی ہے۔ تو کون سی محنت؟ حضوری پہ محنت کریں گے؟ کریں گے نا؟ حضوری پہ محنت کریں۔ یہ جو محمود و ایاز کا قصہ ہے کہ سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ایاز غلام تھا، محمود غزنوی بادشاہ تھا، اس نے حضوری کی انتہا کر دی اور سب سے آگے نکل گیا اور سب سے بڑی فتح پا گیا، اس نے حضوری کی انتہا کر دی۔ ایسی حضوری کہ دنیا حیران رہ گئی۔ آج بھی محمود و ایاز کے قصے چل رہے ہیں۔ مشق تو کریں، فیصلہ تو کریں، محنت تو کریں۔ اللہ پاک کریم ہے، اللہ خود چلائے گا، انگلی پکڑے گا۔ ناگواریوں کے باوجود بھی چلتے رہیں۔ مشق محنت، مشق محنت، مشق محنت، اور اٹھنے والی ہوائیں، فضائیں، تبصرے، تاثرات، ان سے اثر نہیں لینا، ان سے اثر نہیں لینا۔ وہ بندہ پھر چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ مشق محنت۔ تو حضوری پہ آج کے بعد انشاءاللہ میں نے بھی، آپ نے بھی، ہم سب نے محنت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ کیا کرنی؟ محنت کرنی۔ ہم سب نے محنت کرنی ہے حضوری پہ آج کے بعد۔ ایک درویش تھے بابا جی محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ۔ ایک بندہ ان کے پاس آیا کہ حضرت فلاں دلی کا سیٹ ہے، آپ کا جاننے والا ہے، اگر آپ فرما دیں گے میں وہاں نوکری کر لوں گا، ملازمت کر لوں گا، اور باقی وقت میں اللہ بھی کروں گا آپ کی خدمت میں آ کے، تو اس سے بچوں کی روزی روٹی کا سلسلہ آسان ہو جائے گا۔ آپ کے فرمانے سے وہ بات کو اٹھائے گا نہیں۔ آپ نے کہہ دیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آ جائیں کریں۔ بڑا اچھا وقت گزرا، بہت اچھی ترتیب گزری۔
साल साल के बाद उस दिल्ली के सौदागर ने उस बंदे को कह दिया कि आज के बाद आपने मेरे पास नौकरी के लिए नहीं आना। उसने कहा मेरा कोई कसूर? उसने कहा बस आप जाए। वो बाबा जी के पास फिर आया, बाबा जी इतने साल मेरी कोई बददियानती बताएं, मेरा कोई कसूर बताएं, किस वजह से मुझे नौकरी से फारिग किया, वो वजह बता दे। बाबा जी ने उन्हें बुलवाया, दिल्ली के सौदागर को अदब के साथ हाजिर हुआ। उसने जो बात सुनाई वो बात बड़ी अजीब है। उसने कहा जी इसकी बददियानती, इसकी खयानत, किसी चीज में मुझे इश्काल एतराज नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है कि इसने अपने बेटे को दुकान खुलवा के दी है। जब मुझे पता चला कि इसने अपने बेटे को दुकान खुलवा के दी है, मैंने कहा अब मेरे काम का ना रहा। पहले हाजिरी भी थी, हुजूरी भी थी, अब हाजिरी होगी, दिल दिमाग बेटे की दुकान पे लगा रहेगा। उसको चमकाना कैसे है, चलाना कैसे है, बढ़ाना कैसे है, माल आएगा कैसे, जाएगा कैसे, खर्चा कैसे पूरा होगा। तो मुझे तो इसका दिल दिमाग और दुआ, तीन चीजें चाहिए, इसका जिस्म नहीं चाहिए। हाँ, यही मेरा अल्लाह चाहता है और यही खिदमत चाहती है जिस शोबे के भी हो, यही खिदमत चाहती है। अल्लाह पाक जल्ल शान हो इसलिए फरमाया जहन्नमियों को कहेगा इनके मुंह में कीचड़ भर दो, इनकी आवाज भी ना आए, ये मुझे मैसेज भी ना कर सके, इस काबिल नहीं है। और अल्लाह पाक जहन्नमियों का जो सुपरिटेंडेंट दारोगा बनाएगा, मालिक उसका नाम है, अल्लाह उसको बहरा कर देगा कि जहन्नमियों के चीखों पुकार ये सुन ही ना सके। कहा कि मैंने इसको नौकरी से फारिग इसलिए किया है, इसकी पहले हाजिरी के साथ क्या था, हुजूरी थी, जिस हुजूरी को हम कहते हैं दिल दिमाग दुआ। इबादत में भी दिल भी हाजिर हो, दिमाग कि मेरी कितनी रकतें हो गई, कितनी दफा सुभान अल्लाह, अब यहां सुभान रब्बियल अजीम पढ़ना है, सुभान रब्बियल आला पढ़ना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, अब अत्तहियात, अब सलाम। ये दिल दिमाग और दुआ के कलेमात को पढ़ना किस इस्तेहजार, किन कैफियत और किन तवज्जुहात के साथ मैं कुरान, तस्बीह, नमाज, आमाल कर रहा, यही खिदमत में चीजें हैं, यही इबादत में चीजें हैं। शेख अबू बकर मोहम्मद मूसा अल वासती रहमुल्लाह फरमाते हैं यही सब कुछ, यही सब कुछ, यही सब कुछ मेरा अल्लाह कहता है मुझे चाहिए बंदे से। इसलिए फरमाया वो नमाज जिसमें हुजूरी ना हो, अल्लाह पुराने कपड़े की तरह लपेट कर नमाजी के मुंह पर मार देते हैं। इसलिए एक दुर्वेश थे, वो नमाज के बाद दोनों हाथ मुंह पे रख लेते थे। हजरत क्यों? फरमाया मुझे खतरा है कि मेरी नमाज मेरा अल्लाह मुंह पे ना मार दे, मेरा अल्लाह मेरी नमाज मुंह पे ना मार। आप जिंदगी के तजर्बात में देख लें, जिंदगी के तजर्बात में देख लें, आप जिंदगी में किसी बंदे के साथ मामला करते हैं, मुलाजमत करते हैं, रख रखाव चलते हैं, अगर वो बंदा 100% हजूरी में नहीं होगा, आप उसकी जिंदगी में आपको उसको छोड़ के जाना पड़ेगा, आपकी राहें जुदा हो जाएंगी। मैं इसकी हजूरी को भी आस करता हूं।
किसान की हुजूरी, उसका खेत, उसकी जमीन, उसका जमीन का मौसम है। सारा जहान गंदम बो रहा और ये कपास बो रहा, तो हर बंदा कहेगा हाजिरी तो है, हजूरी नहीं है। अब तो गंदम का वेला है, मौसम गंदम का है, और कपास का बीज जमीन खा जाएगी। मौसम है ही नहीं, मौसम है ही नहीं। और जिस वक्त जमीन को पूरी तैयारी है, एक एक हमारे पड़ोस में एक धोबी होता था, उसके पास एक बड़ा जिम्मेदार आता था। मुझे उसके अल्फाज आज भी याद हैं। उसकी फसल बहुत अच्छी होती थी। वो फसल पे हाजिरी के साथ हजूरी भी देता था। वो कैसे? कहता था हल जब चलते हैं ट्रैक्टर के, हलों के ऊपर मैं खुद बैठा होता हूं। क्या हल गहरा जा रहा, या मेरा मुलाजिम ऊपर ऊपर से जमीन तोड़ के कहते हैं मैंने हल लगा दिए। जो हल अगर गया है गहरा, तो मेरी फसल की जड़ें नीचे जाएंगी। असलहा साबितुन व फरवा सवा, फिर जड़ें साएंगी। इसको कुरान कहते हैं। जड़ें नीचे जाएंगी, फसल ऊपर उगेगी, और मेरी फसल चांदी सोना होगी। अगर मैंने हाजिरी दी, हाजिरी से मुराद यह है ऊपर ऊपर से हल उसने मार दिए, ऊपर ऊपर से, और हुजूरी न हुई, हुजूरी न हुई, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? उसका सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि मेरी फसल में मुझे वो आमदनी, वो पैसे, वो रकम नहीं मिलेगी। मेरा मुलाजिम मुझे धोखा दे, वो कहेगा हल लग गए हैं, लिहाजा बीज डालें। मैं बीज डालूंगा, जमीन का गहरा खोदा हुआ होगा नहीं। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब पौधे, आम का मिजाज है, आम खड़ा खड़ा मर जाता है, पता नहीं क्यों, अल्लाह का निजाम है। मेरे वालिद साहब फरमाते थे घोड़ा, घोड़ा, आपने लफ्ज नहीं देखा होगा घोड़े बेच के सोया, यानी जब बिक गया फिर चैन की नींद आई। जब तो बिक गया फिर चैन की नींद आई। घोड़ा बेटा, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे। और आम का पौधा बड़ी मुश्किल से बचते हैं, बड़ी मुश्किल से पलते हैं। बेटियां मरते मरते बच जाती हैं, बेटे बचते बचते मर जाते हैं, फरमाते थे। और उसके लिए क्या करते थे? आम अपनी जड़ें नीचे ले जाए, उसको बहुत नीचे खुदवाते थे, पक्की जमीन खत्म कराते थे, फिर पक्की जमीन की मिट्टी में रेत मिलवाते थे, रेत, और रेत मिलवा के उसको नरम करते थे, नरम, फिर आम का पौधा, फिर वो जड़ें पकड़ता था। जिंदगी का हर निजाम हाजिरी के साथ हुजूरी चाहता है। जिंदगी का हर शोबा हाजिरी के साथ हुजूरी चाहता है। कहने लगा तेरे खाते सारे नामुकम्मल हैं, तूने क्या खाते बनाए हैं? उन्हें मैंने मोटा मोटा लिखा था, ये हाजिरी है, और एक एक पैसा बारीक बारीक लिखना। उसने कहा इसके खाते मुकम्मल हैं, ये हुजूरी है। नमाज, तस्बीह, शेख की खिदमत में हाजिरी, अपने मुर्शिद खाने में हाजिरी, कभी कभार है या हर पल है। अपनी हर हाजिरी के बाद मन में सोचें क्या मेरी हुजूरी रोज बरोज कम हो रही, मेरा अपने मुर्शिद के साथ ताल्लुक बढ़ रहा। उस ताल्लुक के बढ़ने का ताल्लुक इस बात से नहीं कि मैं उनके सामने बैठा रहूं और वो मेरे सामने बैठे रहे, नहीं। असल बात दिल के साथ ताल्लुक होता है। दिल में तलब, ताल्लुक की मैं आप बुनियादें बता रहा हूं। तलब एक, तड़प दो,
तलाह 3, अदब 4, अजमत 5, हुक्म की अजमत, फरमान की अजमत, हाजिरी की अजमत हो, अजमत। मक्का मुकरमा में मुझे कई लोग मिले, साल साल से रहते हैं, काबा नहीं गए। मदीना मुनव्वरा में कई लोग मिले, साल साल से मदीना रहते हैं, आका के रोजे पे हाजिरी सलातो सलाम की नहीं हुई, और उनके दिल में मक्का और मदीना की अजमत खत्म हो गई। हाजिरी का ताल्लुक मुश्किल है, हाजिरी के बाद हुजूरी। दम हुआ, दम का एक झलक मेरे लिए कितनी मुअस्सर साबित हुई कि उसको फायदा होगा दम का जिसके अंदर हुजूरी होगी, अजमत होगी, तलब होगी, तड़प होगी, जज्बा होगा। ये जिंदगी का सफर जो अल्लाह जल्ल शान ने आपको दिया है और आप इस रूहानी सफर में चल रहे हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। मेरी आवाज को जहां जहां कोई भी सुन रहा वो खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने आपको रूहानी सफर के लिए चुना है। अब सफर तो हो गया, सफर तो हो गया, लेकिन उस सफर में से 100% खैरें कैसे पाऊं, खैरें कैसे पाऊं। मैं सफर में जाता हूं ना, तो बच्चों की कोशिश होती है कि खिड़की के साथ बैठे, देखें नीचे समंदर जा रहा, जहाज जा रहा, जहाज के साथ और बहरी जहाज जा रहे, ये रनवे पे जाता कैसे। बच्चों का एक मिजाज है, वो हाजिरी के साथ हुजूरी भी चाहते हैं। ये वहां की हुजूरी है, ये उस सीट की हुजूरी है। हमें हर पल हुजूरी की तलाश कर। अब एक अमल है हिफाजती, नूरानी, रूहानी और एटमी दीवार, कि आपके इर्द गिर्द ऐसी ताकतवर दीवार आ जाएगी, हिफाजत की भी, नूरानियत की भी, रूहानियत की भी, और ताकतवर ऐसी दीवार आएगी कि जिसके सामने आसमानी, जिस्मानी, जमीनी आफात, तूफान से हिफाजत, बलाएं, आफतें उससे दूर होंगी। बहुत ताकतवर अमल है। जादू, जिन्नात, असरात, दुश्मन, हासिद, बंदिश अगर इससे टकराएंगे तो खत्म हो जाएंगे, खुद टकराएंगे ही नहीं, उनको अंदर तौफीक ही नहीं होगी। तो आपने अपना दायां हाथ सर पर रखकर सिर्फ 11 बार सख्त तसव्वुर में अल्लाह के नाम में डूबे में, और अभी से हमने इन नामों से हुजूरी पानी है, सर झुका के, डूब के, तवज्जो से, ध्यान से मेरे साथ पढ़ते चले जाएंगे। या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम। या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम। या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम। या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम। या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम। या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम। या हाफिजो, या हफीजो, कीबो, या वकीलो, या सलाम। या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम। या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम। हाफिजो, फीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम। या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम। या हाफिजो, या हफीजो, या रकीबो, या वकीलो, या सलाम। बहुत कमाल अमल किया। आफात हमेशा ऊपर से आती हैं, और आपने ऊपर सर पे हाथ रखा और ऊपर से आपके अल्लाह के 5 नामों के जरिए से हिफाजत मांगी, किफायत मांगी
किफालत मांगी, मदद मांगी, राहत मांगी, नुसरत मांगी, और अल्लाह के नामों की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह आप महफूज हो गए। आपके घर वाले भी, घर वालों की नीयत भी साथ, पूरी उम्मत की नीयत भी साथ, पूरी इंसानियत की नीयत भी साथ आपने की। एक ताकतवर अमल है। हर कश्फुल माजूब के हल्के में इस अमल को कभी ना छोड़िएगा, इस अमल में शमूलियत कभी ना छोड़ेंगे। ये आपकी और आपकी नस्लों की हिफाजत, किफायत, फिर दुनिया में करोने आए, दुनिया में आफात बलाएं आए, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। और ये अल्लाह के 5 नूरी लफ्ज आपकी नस्लों के रिस्क को, सेहत को, इज्जत को, बरकत को, आफियत को ऐसे बचाएंगे और हिसार कर लेंगे, चारों तरफ कड़ा दे देंगे, चारों तरफ, और हिफाजत का निजाम बन जाएगा। ये किया हुआ अमल बहुत ताकतवर है। खवातीन मर्द हर हालत में ये अमल कर सकते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं। कहते हैं कि कुछ बुजुर्गों के नाम लिए कि वो दायम हुजूरी है। कहते हैं ये जो हुजूरी है ये तसव्वुर शेख के करीब है। हुजूरी में तो सिर्फ फनाइयत है और उसमें अल्लाह ही अल्लाह है। खिदमत में क्यों कर रहा? अल्लाह के लिए। इबादत क्यों कर रहा? अल्लाह के लिए। कोई देखे ना देखे, कैमरे की आग पहचाने ना पहचाने, मुझे कोई शाबाश दे या ना दे, मैंने सिला किससे लेना? अल्लाह से। और किसी का सवाल? जी है जी। कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह चली जाए तो हजूरी नहीं होती, यानी हजूरी टूट जाती। असल में मश्क करेंगे तो हो जाएगी। मिसाल देता हूं, फकीर ट्रेन में भी मंगता फकीर, स्टेशन में भी मंगता फकीर, घर में गलियों में भी मंगता फकीर। एक आने का सवाल है, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। फकीर हर जगह फकीर, भिखारी हर जगह भिखारी होता है। अगर हमारी हुजूरी टूट जाती है तो मालूम यह हुआ वो अभी दिल में पुख्ता नहीं हुई। जो हमारे एक बाबा जी थे, नाना मजीद कहते थे उन्हें, वो कहते थे अबे तेरे दिल में ठुकी ना है। मुहाजिर थे, वो एक लफ्ज कहते थे, बड़ा प्यारा लफ्ज था, तेरे दिल में ठुकी ना है। जब ठुक जाएगी तो फिर बात बनेगी। मश्क करें, इंशाल्लाह आपका जज्बा सच्चा है। ये सच्चे जज्बे की दलील है कि एक जगह हुजूरी होती है, नहीं होती। ये भी तलाश का हिस्सा है कि क्यों नहीं होती। बेचैन हुए हैं तो सवाल किया है, तो अल्लाह के यहां इसकी भी कीमत है। तो हुजूरी के लिए मेहनत, मश्क करें। एक वक्त आता है मिल जाती है, ना भी मिली ना भी मिली। वो शहंशाह दिल पे नजर रखता है। वो अल्लाह कहता है मांगता रहा था, कोशिश इसने पूरी की थी, कोशिश में कमी नहीं करनी। अगर कोशिश में कमी की और फिर तवक्को रखी अल्लाह के हाथ, इसकी हालत फिर निफाक की हो जाएगी। कोशिश करा की और उसने पूरी की, अल्लाह के यहां इस कोशिश की कीमत है, इस कोशिश का अजर है। और किसी का सब? हाँ, वकूफ कल्बी और हुजूरी एक ही चीज है, एक ही चीज। वकूफ कल्बी की वजाहत कर दो। आपने एक लफ्ज सुना होगा, हज में वकूफ अरफा है। वकूफ कहते हैं वक्फ को, कयाम को। अरफात में कयाम करने वाले हाजी 9 जिल हज को जमा होते हैं, वो हज है, उसे वकूफ अरफा कहते हैं।
इस तरह अल्लाह की जात आली का तस्वुर दिल में रहे, हर पल रहे, हर सांस रहे, कभी ना टूटे दुनिया के मशगलों में, कभी ना टूटे। और जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, और हर चीज में अल्लाह का तस्वर हो। खाना सामने है तो अल्लाह खिला रहा, पीना है तो अल्लाह पिला रहा। खाना खाऊंगा हुक्म समझ के, पेट अल्लाह भरेगा। पानी पीऊंगा हुक्म समझ के, प्यास अल्लाह हो जाएगा। दुकानदारी करूंगा हुक्म समझ के, हलाल तरीके से, रोजी कौन देगा। नौकरी सम करूंगा हुक्म समझ के, उसमें मेरी जरूरतें कौन पूरी करेगा, अल्लाह। खिदमत करूंगा 100% हुक्म समझ के, उसमें मुझे और मेरी नस्लों को पालना और जरूरियात का पूरा होना, और मेरे मसाइल का हल कौन करेगा। ये सारी बहुत सारी चीजों, इस तस्वर का नाम है वकूफ कल्बी। वकूफ कल्बी, दिल में उसकी बस हर याद, तस्वर। और दायम हजूरी भी यही चीज है। अब एक अगला अमल है कि हमने दिल पर शहादत की उंगली रखकर 11 बार पैसा पहला कलमा पढ़ना है। तस्वर यह हो कि ये उंगली मेरे मुर्शिद ने रखी है, और आज तक लोगों की ख्वाहिश है कि हजरत दिल पर उंगली रख दे, कल्ब जारी हो जाए, दिल में अल्लाह का नाम और नूर आ जाए, दिल नूरानी हो जाए, दिल नेकी को चाहे, रूह की दुनिया आबाद हो, सीने से वसाविस, शक, बदगुमानियां, डिप्रेशन, बेसुकूनी, टेंशन, ये सब खत्म हो। ये इस अमल की ताकत में शामिल है जो अमल अभी कर रहे हैं। इसके अलावा भी इसके बेशुमार कमालात, बेशुमार बरकत, और इसके अलावा भी इसके बेशुमार समरात हैं। तो दिल पे उंगली रखें, बाएं तरफ पसली के नीचे, यहां सामने दिल है, और दिल को उंगली रख के 11 बार पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 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 ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब एक अमल और है, ये कलमा अल्लाह के पास अमानत रखवा दें। सोते हुए ये पहला कलमा अल्लाह के पास अमानत रखवाया करें कि या अल्लाह, आखिरी वक्त में अमानत मुझे लौटा दे। क्या ख्याल है, अल्लाह अमानतदार है या नहीं है? जो रब खयानत को नापसंद करता है, वो नौज़बिल्लाह खयानत कैसे कर सकता है? कई लोगों का खात्मा ईमान पे हुआ, आखिरी वक्त में कलमा नसीब हुआ। रोते हुए अभी भी दिल में रखें, या अल्लाह कलमा अमानत है, जब मेरा आखिरी वक्त हो ये अमानत मुझे लौटा दे, अल्लाह मुझे दे दे। तस्वर ये हो, दिल एक बॉक्स है, मैंने उसको खोला, एक संदूक है, उसमें कलमा रख के मैंने बंद कर दिया। अब ये जो कलमा पढ़ा, पूरा मजमा पूरी दुनिया का हमारे साथ है, ये अपने मरहूमीन पूरी उम्मत को हदिया करते हैं। अपने आप के लिए भी है, हदिया कर दें। और ये समझ लें, हमारे आज के हदिये ये 70,000 के कई निसाब बन जाएंगे। इतना मजमा पूरी दुनिया का भी, तस्बीह खाने का भी, ये 70,000 के कई निसाब बन जाएंगे।
اور فرمایا جس مرحوم کو 70,000 کلمہ دیا جائے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب اگلا عمل چیزوں پر دم ہے۔ آپ بہت سی چیزیں لاتے ہیں دم کرانے کے لیے، لنگر لاتے ہیں دم کرانے کے لیے، ان چیزوں پہ دم ہے، ان چیزوں پہ دم ہے، آپ پہ بھی اور آپ کی چیزوں پہ بھی دم ہے، آپ پہ بھی آپ کی چیزوں پہ بھی دم ہے، اور پوری دنیا کے لوگ بیٹھے ہیں دم کے لیے، ان پہ ان کی بیماریوں، تکلیفوں، مسائل، مشکلات، اس کے لیے دم، اپنے مقاصد مسائل کا تصور کرتے ہوئے سر جھکائیں گے، اللہ کی طرف دھیان کریں گے۔ دم یقین والے کو اس کا نفع ہوتا ہے، اعتماد والے کو اس کا نفع ہوتا ہے، ادب والے کو اس کا نفع ہوتا ہے، اور الحمدللہ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں۔ تو دم میں آپ انشاءاللہ شریک ہیں، سر جھکا کے پوری توجہ سے بیٹھیں گے۔